मुंडू हमारे बीच में आ रहे हैं। आइए जोरदार ताली बजाकर दोनों परमेश्वर के राज का स्वागत करें। Shall we welcome one more time to Reverend Bloss to the platform? Testing. Did you have your chai? आपने चाय पी ली? I did too. It was very good. मैंने भी पिया और बहुत मजा आया। Are you ready for some more teaching? और भी आप सीखने के लिए तैयार हैं? Amen. We've been talking about God's vision, हम परमेश्वर के दर्शन की बात को करते रहे हैं, God's strategy, परमेश्वर की रणनीति and God's method. और परमेश्वर के तौर तरीके विधि। And we are still talking about God's method अभी भी हम लोग परमेश्वर के विधि या तरीके के बारे में सुन रहे हैं। from 2 Timothy chapter 2 verse 2. दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 2 अध्याय उसका दूसरा पद में The apostle Paul said to his son Timothy, और उसने अपने धर्मपुत्र तीमुथियुस से कहा था, those things that you have heard from me in the group of faithful witnesses, विश्वास योग्य गवाहों के सामने जो बातें तुमने मुझसे सुनी, you teach them, उन्हें तू सिखाओ, that they will be able to teach others. ताकि वो दूसरों को भी सिखा सकें। We said there are 4 generations listed here. और यहाँ पे 4 पीढ़ी के लोग हैं। And the principle is that the training should go on and on. और ये सिद्धांत है कि शिक्षा को आगे और आगे जाते रहना चाहिए। When you go to a people, you go and you reach a person. और जब आप लोगों के पास में जाते हैं या एक व्यक्ति के पास जाते हैं, You teach them what you know. आप जो कुछ जानते हैं उनको सिखाएं। Churches are birthed. और Churches are started, और कलीसियाएं शुरू हो गई हैं, and other churches are started from the churches. और उन कलीसियाओं से और दूसरी कलीसियाएं शुरू होती जाती हैं। We call this the 2-2-2 Dewey principle. और ये मतलब करो 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 ये सिद्धांत है। 2-2-2 करके करो। Can you say the 2-2-2 principle? आप ये बोल सकते हैं 2-2-2 सिद्धांत। बोलिए 2-2-2 सिद्धांत। We call it this because it's found in 2 Timothy chapter 2 verse 2. ऐसा 2-2-2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूसरा तीमुथी 2 अध्याय का 2 पद में लिखा हुआ है। If you can remember 2-2-2 principle, you'll always know where to find this scripture. और अगर आप 2-2-2 को याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। Remember, our purpose is fulfilling God's vision. इस बात को हमेशा याद करो कि हमें परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना है By using His strategy and method. और परमेश्वर की रणनीति को और परमेश्वर के तौर तरीकों को इस्तेमाल करते हुए। So we're going to demonstrate this. अब हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। You are going to need a microphone. Do we have another handheld? No. Okay. We have. Can you hear me if I walk away? All right, he can hear me. Let's say that I am going to a people. मान लीजिए कि मतलब मैं आपके पास लोगों के बीच में वो जा रहे हैं। And I want to let the Lord use me to carry His glory. और वो चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा को उनके द्वारा ले चले। And so I come and I live. और जहाँ पे मैं रहता हूँ, I display the character, the fruit of the Spirit of God. और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैं कुछ बजाता हूँ। And with time, I win someone to Jesus. और ये समय मैं किसी को मसीह के लिए जीतता हूँ। I've had the opportunity to live, share my story,
and give them the glory of God's Word. और मैं परमेश्वर की स्तुति के लिए मैं अपने जीवन की कहानी और परमेश्वर के वचन को उनके साथ बांटता हूँ। And so you have become a believer in Christ. और आप भाई साहब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बन गए। Now I want to meet with you tomorrow. और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कल मिलें। Can I meet with you? क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? What's a good time to meet with you? आपसे मिलने का अच्छा समय क्या है? In the morning? What time? सुबह में About 8 o'clock. Can I meet at your house? करीब 8 बजे क्या मैं आपके घर में मिल सकता हूँ? I will be there. मैं वहाँ पे होऊंगा। Now what we are going to do, आप हम क्या करेंगे? I'm going to begin to teach you the things that Christians do when they become a believer. जब एक मसीही विश्वासी बन जाता है तो लोग क्या करते हैं उसके बारे में मैं सिखाऊंगा। And we're going to look at the Holy Scriptures together. हम लोग मिल करके पवित्र शास्त्र को सीखेंगे। I'm going to begin the process of teaching you the importance of prayer. और प्रार्थना के महत्व के विषय में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। You will learn how to pray by listening to us pray. और प्रार्थना को सुनते हुए कैसे प्रार्थना करना है इसको सीखना है। We'll do the same thing from Scriptures about worship, और उसी प्रकार हम आराधना के बारे में भी सीखेंगे, about giving. दान देने के बारे। We'll learn about everything that believers should do. एक विश्वासी को जो कुछ भी करना है सब कुछ सीखेंगे। Also about evangelism. और ये भी कि सुसमाचार कैसे प्रचार किया जाता है। So after we meet tomorrow, then I want you to go with me. और जब मैं मिलेंगे मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। You don't need to do anything. आपको कुछ नहीं करना है। You just need to be with me आपको सिर्फ मेरे साथ रहना है and watch. और देखो। And from watching, you're learning. और देखकर आप सीखोगे। And in time, और उसी समय में not very long, बहुत लंबा समय तक नहीं, you'll be able to win your people to the Lord. और तब तुम अपने ही लोगों को प्रभु के लिए जीत सकते हो। So I've taken him through this process. और इस तरह प्रक्रिया से मैं उसको सिखाता हूँ। He knows how to do this. और ये सीख जाता है कैसे करना है। So he's going to bring 2 more अब ये जाकर के 2 लोगों को और लेके आएगा। that become followers of Jesus. यीशु मसीह का ये अनुयायी बनेंगे। Now you have a pretty good sized village. और आपके गांव बहुत बड़ा है। You have men and women and young people. आपके गांव में जवान हैं, स्त्री और पुरुष हैं, बच्चे हैं। So I want you to go to your village and I want you to bring back 2 more people. मैं चाहता हूँ कि आप अपने गांव में जाकर 2 और लोगों को लेके आओ। Go get them. जाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. Now, I am going to keep teaching you, मैं तुमको लगातार सिखाऊंगा, but it's not my responsibility to teach them. लेकिन जिम्मेवारी इन दोनों को सिखाने का मेरा नहीं है। It's your ये responsibility. जिम्मेवारी तुम्हारा है। But now 1 plus 1 अब एक व्यक्ति एक को is 2. 2 हो जाता है। But now 1 plus 2 is 3. अब यहाँ पे 1 प्लस 1 3 We have been adding. हम जोड़ते जा रहे हैं। We're getting ready to multiply. हम उसके बाद में गुणित होंगे। Because now each of you अब आप में से हर एक have been trained. आपको सिखाया गया है। Each of you now go and bring 2 more. आप में से 2, 2, 2. तीनों 2 को लेके आइए।
Now we have a church formed. अब यहाँ पे एक कलीसिया है। A church is not one family. कलीसिया एक परिवार नहीं होता है। A church are several families. कलीसिया में कई परिवार होते हैं। They don't have to meet in a building, but a house. उनको कोई इमारत में रहने की आवश्यकता नहीं, घर में भी रह सकते हैं। But he's still being instructed by me. और उसको अभी तक मैं सिखा ही रहा हूँ। You are being instructed by those who brought you to Christ. और जो आपको प्रभु तक लाए हैं वो आपको सिखाते जाएंगे। But now 3 have become 9. अब 3 लोग 9 बन गए। So now we have multiplication. अब यहाँ पे गुना का प्रक्रिया शुरू हो गया। Watch this. देखो, All of you have been trained. आप सबको सिखाया गया। Go bring 2 more. आप 2-2 को लेके आओ। सब लोग 2-2 को लेके आओ। Hurry. जल्दी करिए। Do you see what is happening? आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। Nobody has to do very much. किसी को बहुत ज्यादा करना नहीं है। 2, 2 anyone can bring 2 to Christ. कोई भी आदमी कम से कम 2 को मसीह के पास ला सकता है। Train them to do what you know to do. आप जिस चीज को करना सीख गए उनको करना सिखाइए। Now we have already enough आप लोग काफी लोग हैं। that we could have at least 3 house churches. अब हम लोग आपको 3 घरेलू कलीसियाओं में बांट सकते हैं। So divide yourself into 3 churches. आप 3 कलीसियाओं में बांट दीजिए। 3 भाग करिए। Help me, doctor. Now we have 3 churches. यहाँ पे 3 कलीसियाएं हो गई। But you're existing to plant the next church. लेकिन आप यहाँ पे इसलिए हैं ताकि आप अगली कलीसिया को स्थापित करो। Some of you are younger in the Lord. आप में से कुछ लोग अभी यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। Some of you are ready to finish training. और कुछ लोग आपका प्रशिक्षण समाप्त करने वाले हैं। Some of you are ready to be sent to the next place where a church needs to be formed. और आप में से कुछ लोग उस जगह पे कलीसिया तैयार करने के लिए तैयार हैं। Something wrong with this church. इस कलीसिया में कुछ गड़बड़ी है। Something wrong with this church. इसमें भी कुछ गड़बड़ी है। Do you know what's wrong with those 2? आप जानते हैं कि वहाँ पे क्या है? No ladies. वहाँ पे बहन लोग नहीं है। Are you married? आपका शादी हो चुका है? Where's your wife? आपकी पत्नी कहाँ है? You didn't bring your wife? Are you married? आपका शादी हुआ है? Where's your wife? आपकी पत्नी कहाँ है? In the village. In the village. You married? आपका शादी हुआ है भाई? Where's your wife? पत्नी कहाँ है? राजस्थान। In the village. They are planning another church, he said. You understand what I'm saying? मेरे कहने का बात समझ रहे हैं आप लोग? In reality, you'll have men and women in your churches. कलीसिया में केवल पुरुष लोग नहीं होते, स्त्री और बच्चे भी होते हैं। And in a little bit, I'm going to tell you that God anointed the women just like He did the men. और परमेश्वर महिलाओं को भी उसी प्रकार अभिषेक दिया जैसे पुरुषों को दिया है। Hallelujah. Hallelujah. There are some places I've been in India where women are planting churches easier than the men. मैंने भारत में देखा है कि महिला लोग पुरुषों से भी ज्यादा आसानी से कलीसिया बनाते जा रहे हैं। When men get together, और जब हम लोग मिलके हैं, everybody starts wondering what are they talking about.
और सब लोग सुनते हैं कि लोग उसको क्या कह रहे हैं। When women get together, जब बहन लोग मिलकर रहते हैं, everybody just thinks they're talking about their children, और लोग सब सोचते हैं कि बच्चों के बारे में बात कर रहे they're हैं, talking about cooking, या भोजन पकाने के बारे, they're talking about things of life. और जीवन की बातों को। And so a woman can start a church easier in some places इसीलिए बहन लोग कुछ जगहों पे आसानी से कलीसिया स्थापित कर सकती हैं, because they can study the word and nobody wants to know what they're doing. और मतलब जब वो लोग करते हैं तो कोई जानना नहीं चाहता कि वो क्या कर रहे हैं। It makes sense to me. ये मेरे लिए कुछ अर्थ रखता है। Women are never in trouble. और महिलाएं कभी भी समस्या में नहीं पड़ती हैं। Only men. पुरुष लोग समस्या में फंसते हैं। That's why I've learned how to have a happy marriage. I've learned how to have a happy marriage. इसीलिए मैंने सीखा कि कैसे सुखी परिवार चलाना है। Yes, ma'am. हाँ मैम साहब, Forgive me. मुझे माफ करो, I was wrong. मैंने गलत किया था, I'll never do that इससे again. मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। I lied about all these और things. ये सब मैं झूठ बोला। And all the men are laughing because ऐसा पुरुष लोग हंस रहे, कुछ कारण तो होगा। you understand the process. आपको प्रक्रिया समझ में आया। This is how you carry the glory of God. इस प्रकार आप परमेश्वर की महिमा को लेकर के चलते हैं। If I carried this process, the whole place could be up here. और तब आप इसी का काम को आगे करेंगे, सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे। Not in 5 years, 5 साल में नहीं, but very quickly. बहुत जल्दी से, 1-2 years. 1-2 साल में। When the Holy Spirit moves like this इस प्रकार जब पवित्र आत्मा काम करता है and moves us out of traditional church planting, और हमारी पारंपरिक तरीकों से जब बाहर निकाल के जाता है, we can see a great harvest brought in, trained, raised up, and sent. और हम लोग ऐसी कटनी को काटते हैं, तुरंत उनको फिर तैयार करके भेजते हैं। Amen. आमीन। Do you have a happy life? क्या आपका सुखी जीवन है? Yes. हाँ? Is your wife happy? क्या आपकी पत्नी खुश है? And we know why. हम जानते हैं क्यों। Praise the Lord. Praise the Lord. Say the 2-2-2 principle. ये बोलिए 2-2-2 का सिद्धांत। Amen. बोलिए जोर से। Where is it found? ये कहाँ पाया जाता है? Where is God's strategy found? और परमेश्वर का रणनीति कहाँ पर है? दो। That's the end of the vision. Very good. God's strategy, Matthew 24:14. और मत्ती 4 का 14, 24 का 14। And God's vision, और परमेश्वर का दर्शन Habakkuk 2:15. हबक्कुक 14. 2:14। Amen. आमीन। Thank you so much. You may be धन्यवाद। seated. वहाँ पे बैठें। Nothing happens until somebody sees it. जब तक कोई एक आदमी देखने नहीं लगता है, तब तक कुछ नहीं होता है। God saw what he wanted to accomplish. जो कुछ परमेश्वर करना चाहता था, उसको उसने देखा। Somebody saw this building before it was. इस इमारत के बनने के पहले किसी ने इस इमारत को देखा। You are sitting in somebody's vision. आप किसी और के दर्शन के ऊपर बैठे हैं। You have to see it in your mind. आपको अपने मन में देखना है। You have to become passionate in your heart. और आपके दिल के अंदर में तीव्र इच्छा को उत्पन्न करना है। It's not a wish, it is a must. ये ख्वाहिश नहीं है, ये आवश्यक है।
There's a lot of things I wish about, बहुत सी बातों की मैं ख्वाहिश रखता हूँ, but I'm not passionate about it. लेकिन वो मुझे मिले या नहीं इतना मुझे चिंता नहीं है। But I am passionate about God's vision. लेकिन परमेश्वर के दर्शन के प्रति मुझे तीव्र इच्छा है I like to laugh. और मैं हंसना चाहता हूँ I like to enjoy life. और जीवन का मजा लेना चाहता हूँ, But I am serious about God's business. लेकिन परमेश्वर के कार्य में मैं गंभीर हूँ। And while I'm working towards His vision, I enjoy it. और जब मैं उसके दर्शन के विषय में काम करता हूँ मैं उसका आनंद लेता हूँ। But God has a vision, and before it can happen, somebody has to see it. और परमेश्वर के पास एक दर्शन है और उसको संपादित करने के पहले किसी के पास में दर्शन होना चाहिए। But not only do you have to see it, ना केवल आपको देखना है, the vision has to become specific. और दर्शन को एक विशिष्ट रूप लेना है। You have to sit down and put it in writing. आपको बैठना है और उसको लिख लेना है। Now, how many of you are Pentecostal? आप में से कितने लोग पेंटिकोस्टल लोग हैं? That is what I thought. मैं भी ऐसे ही सोचा था। Put your hand down. हाँ, नीचे कर ले हाथों को। I would not admit anything. और मैं कुछ भी नहीं मानूंगा। I know us. मैं जानता हूँ आप। I've been Pentecostal all of my life. मैं अपने जीवन भर पेंटिकोस्ती हूँ। We do not plan. हम योजना नहीं बनाते हैं, We do not write. हम लिखते नहीं हैं, We do not work as a team. एक समूह के रूप में काम नहीं करते। We get up every morning. और हम सुबह में उठ जाते हैं, We say, I'll just be led by the Spirit. हाँ पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगा, And we go through our ministry. और हम हमारी सेवकाई में चले जाते We हैं। get ready to die. हम मरने के लिए तैयार हो जाते हैं And we can't say what has happened. और हम नहीं कह सकते क्या हुआ। Look at somebody किसी को देखो and say this. और ऐसा बोलो, Pentecostals are lazy. पेंटिकोस्ट लोग आलसी हैं। बोलिए आपके पड़ोसी को। Thank you, doctor. डॉक्टर साहब ने कहा कुछ पेंटिकोस्टल लोग आलसी हैं। I grew up with us. और मैं आपके साथ नहीं बढ़ा I've never had a pastor और मेरा कोई पास्टर नहीं था। get up and say, this is the vision of the church. और उठ करके कहो ये कलीसिया का दर्शन है। Most of the churches I go into have no vision on their wall. और मतलब बहुत सी कलीसियाओं के दीवारों में कोई दर्शन नहीं लिखा हुआ है। If I say to a pastor, what is your vision? What is your purpose? और जब मैं एक पास्टर को पूछता हूँ कि आपका दर्शन क्या, आपका मकसद क्या है, Well, to minister to the saints and to get many people saved. और वो कहें कि बहुत से लोग उद्धार पाए, That's no vision. ये दर्शन नहीं है। There's nothing in writing. कोई उसको लिखा हुआ नहीं है। I want to know, how many do you want to get saved? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मतलब उद्धार पाए? How many Christians do you want to raise up as leaders? एक अगुआ के तौर पर आप कितने लोगों को मसीह बनाना चाहते हैं? I want to know when you want to have done that. और मैं चाहता हूं कि आप इसको कब, कितना समय में करना चाहते And हैं। I don't just want you to tell me it's up here. I want to see it in print. I want to see it in print. और मैं उसको लिखा हुआ देखना चाहता हूं, I want to see it on walls. और दीवारों में लिखा हुआ देखना चाहता हूं। I want to see it in paper you hand me. आप जो कागज आपके पास है उसमें लिखा हुआ देखना चाहता हूं। I want to know who's on the team. और मैं देखना चाहता हूं आपकी टीम में कौन कौन है। You know what I just said? आपने सुना मैंने क्या कहा? I just said you have to work. मैंने कहा कि आपको काम करना है You have to spend time and energy thinking. और आपको सोचने में समय और ताकत को लगाना है। You have to call meetings with the team. और टीम का मीटिंग बुलाना है।
You have to listen to them. आपको उनकी बात सुनना है, They have to listen to you. उनको आपकी बात सुनना है, And what is said, you write it all down. और जो कुछ भी कहा जाता है बताया जाता है उसको लिखते जाइए, And then you go back to it. और फिर उसमें वापस जाएं, You say, now, what do we need to do out of all that's been said? और जो कुछ हम लोगों ने बातचीत में कहा है उसके बारे में क्या करेंगे, And you make another list. और एक दूसरा सूची बनाइए, And then you go over the list again. और एक बार सूची में फिर से देखिए What has to be done first? सबसे पहले किस काम को करना चाहिए, What has to be done second? और उसके बाद कौन से काम को करना है, Third, fourth, fifth. तीसरा, चौथा और पांचवा। This takes work. और इसके लिए काम करना पड़ेगा, It takes thinking. इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, It takes talking and communicating. इसके लिए आपको एक दूसरे से बातचीत करना पड़ेगा, वार्तालाप करना पड़ेगा। If you are going to live your life for 70, 80 years, अगर आप 70-80 साल तक जीवन जीना चाहते हैं, you cannot simply get up every morning and say, Holy Spirit, lead me. और सुबह उठ करके आप केवल ऐसा नहीं बोल सकते, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर। God is leading us. परमेश्वर हमारी अगुवाई He करता है, gave us God's vision. उसने हमें अपना दर्शन दिया, He gave us the strategy. उसने हमें रणनीति दिया, He gave us the methods. उसने हमें तौर तरीके दिए, What is this, Holy Spirit, lead me? और ये पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, ये क्या है? He has led us. वो हमारी अगुवाई किया है, He's given us His word. उसने अपना वचन हमें दिया है, I don't need a new plan. और मुझे नई योजना नहीं चाहिए, I don't need a new vision. मुझे नए दर्शन की आवश्यकता नहीं, I need God's vision. मुझे परमेश्वर के दर्शन की आवश्यकता है, I need to work God's vision. और मुझे परमेश्वर के दर्शन पर काम करना है। Now look at somebody. किसी को देखो Say this. और बोलो, I like the morning session better. और सुबह के सत्र को मैं अच्छा लगा मुझे। If the morning session was to set you up for this session, the morning session was to set you up for this session. और ये सुबह का सत्र, ये सत्र के पास ले आया हमें। Look at somebody. और किसी को देखिए, Say, I'm tired of being independent. और मैं स्वतंत्र होकर रहने जैसे मैं थक चुका हूँ। That doesn't mean you have to belong to a denomination. That does not mean you have to belong to a denomination. और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी संस्था का भाग नहीं बनना है। It does mean that pastors and churches need to work together. इसका मतलब है कि पास्टर और कलीसियाओं को मिलकर काम करना है। And there is a way you can work together. और एक तरीका है जिसके द्वारा आप काम कर सकते हैं। The Lord willing, tomorrow we're going to be teaching partnership principles and networking. और हम पार्टनरशिप के सिद्धांतों के विषय में और उसके बाद कैसे काम करना उसके बारे में सीखेंगे। I would like to see you committed from your geographical areas to work together to do the vision of God. और मैं चाहूँगा कि आपके भौगोलिक मतलब क्षेत्र के हिसाब से आप मिलकर काम करें। But nothing happens until it becomes specific. और तब तक कुछ नहीं होता है जब तक हम लोग एक विशेष काम में नहीं उतरते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले my wife and I were praying. मैं अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना कर रहा था। We were praying for South Asia. हम दक्षिण एशिया के लिए प्रार्थना कर रहे थे। We said, Lord, what do you want us to believe you for? और हे प्रभु, आप किस बात के लिए आप चाहते हैं कि हम विश्वास करें? Here's my vision. ये मेरा दर्शन है। 2,800 churches. 2,800 कलीसियाएं। 140,000 new believers. और 1,44,000 विश्वासी। By training the nationals who will plant churches. और मैं स्वजातियों को सिखाऊं कि वो कलीसियाओं को रोपित करें। Planting churches that will plant churches. ऐसी कलीसियाओं को रोपित करें जो दूसरे कलीसियाओं को रोपे। Where there are no churches. वहाँ पे जहाँ पे कोई कलीसियाएं नहीं है। I have 1 year left in the 5-year vision. 5 साल के दर्शन के लिए 1 साल बाकी है। We have reports come back to us that almost 2,000
churches have been planted in the last 4 years. और हमारे पास रिपोर्ट आया है कि पिछले 4 सालों में लगभग 2000 कलीसियां स्थापित हो गई हैं, Simply by training the nationals. और वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को सिखाने के द्वारा। Hallelujah! हालेलुया। Doctor and I were talking. और डॉक्टर साहब के साथ मैं बात कर रहा था, We are of same heart. और हम हृदयों को देख रहे हैं। We don't need missionaries. हमें मिशनरियों की दरकार नहीं है, We need nationals trained. और हमारे जातीय लोगों को, राष्ट्रीय के लोगों को देखना है, You सिखाना है, know the language. क्योंकि आपको भाषा मालूम है, You know the culture. आप वहाँ की संस्कृति से वाकिफ हैं। Look at my skin. मेरे चमड़े को देखो, That's enough to tell you God did not design me to reach India. और ये गोरा रंग इसलिए है, मतलब परमेश्वर ने भारत को पहुंचने के लिए नहीं बनाया है। But look at you. आपको देखने के द्वारा, Go ahead, look. देखो आपके रंग को, Look. देखो अपना रंग। Yeah. God designed you to reach India. भारत को जीतने के लिए आप ही को बनाया है। Amen. आमीन। All we do is come alongside of you as equals and say, you need to consider these things. और आपको एक जगह मिल करके इन बातों को करके कुछ करना है। If I'm a businessman अगर मैं कोई व्यवसायी हूँ and I want to start a business और मैं एक व्यवसाय करना चाहता हूँ, and I need 20 lakh rupees, और इसके लिए मुझे 20 लाख चाहिए, and I go to the bank मैं बैंक में जाता हूँ and I walk and I say, I want you to lend me 20 lakh rupees. और मैं चाहता हूँ कि मुझे 20 लाख कर्जा दिया जाए। They say, show me your business. बोला कि तुम अपना बिजनेस मुझे दिखाओ। And I say, oh, it's here. और बोला कि ये तो यहाँ पे है। They're going to say, come back when you have it in writing. और बोला कि जब तक तुम लिख के नहीं लाओगे, लिख करके ले आओ। So I go and I work. और मैं जा करके काम करता हूँ, I put it in writing. मैं उसको लिख लेता हूँ, I get pictures of my product. और मेरे जो प्रोडक्ट के तस्वीर को भी डालता हूँ। I put in the writing and maybe pictures if I need machinery to produce it. और मुझे लिख करके बताना है कुछ मशीन जिसके द्वारा काम करने वाला सब दिखाना है। How many employees do I need? और मुझे काम की गार चाहिए, कितने कामगार चाहिए, What kind of building do I need? किस प्रकार का इमारत चाहिए, How much money do I need? और मुझे ये सब करना है। And it is itemized. It is listed. और ये इनको सूचीबद्ध किया गया है। And then I go to the bank तब मैं बैंक में पहुंचता हूँ and I hand them 30 pages of writing. और 30 पेज में लिखा हुआ है ये। They say, we'll take this to the council. और बोला कि हम अपने इसको अपने कमिटी में ले जाएंगे। And 3 weeks later, you get a call. और 3 सप्ताह के बाद आपके पास टेलीफोन आता है, Sir, महोदय come on in here. आप आइए, We've approved your plan for your business. We're going to lend you the money. हाँ आपके बिजनेस को हम लोगों ने स्वीकृति दे दिया है, हम आपको कर्जा देंगे। Nothing happens until it becomes specific. और जब तक आप विशिष्ट नहीं होते हैं तब तक कुछ नहीं होता है। How many times have I had a thought or an idea? और एक विचारों का ये विचार कितने बार आया, I write it मैं उनको लिख लेता हूँ and I read it. और उसको पढ़ता हूँ। That's not what I was thinking. ओ ये तो मैं नहीं सोच रहा था, I throw it away. उसको मैं फेंक देता हूँ, I write it again. फिर से मैं लिखता हूँ। That's more like it, but not quite. और उसी के समान है लेकिन वो वैसा ही नहीं। So I throw it away फिर मैं फेंक देता हूँ, and I write it again फिर से मैं लिखता हूँ, and I may write it again बार बार लिखता हूँ, and I may write it again फिर से मैं लिखता हूँ, until I get my thought the way I want it to read. जिस प्रकार मैं सोचता हूँ कि मुझे ये होना चाहिए वैसा जब तक मैं नहीं लिखता हूँ तब तक मैं लिखते रहता हूँ। It helps me clarify so I can communicate the vision. और तब उसके बाद मुझे स्पष्ट करता है कि मैं अपने दर्शन को दूसरों को कैसे बता सकता हूँ। Somebody saw this building, और किसी ने इस बिल्डिंग को देखा, but before it was built, it had to be put in print. और जब ये बनने के लिए उसको कागज में आना था, We call that an architect. और उसको हम लोग आर्किटेक्ट कहते हैं। What do you call it here? Architect.
The architect's job is to take the vision and put it in specific writing or print. और आर्किटेक्ट का काम है कि किसी भी प्रोजेक्ट को कागज में बनाना, so that those who are building the building can always refer to the vision that's in print. और तब उसके बाद बनाने वाले कारीगर लोग हमेशा उस नक्शे के अनुसार वो काम करेंगे। This is exactly what God did. और परमेश्वर ने बिल्कुल इसी तरह का काम किया। He had a vision, उसके पास एक दर्शन He था, put it in writing, उसको उसने लिख दिया, and we are building His kingdom. और हम उसके राज को बना रहे हैं। Not according to our plan, और ये हमारी योजना नहीं है, but according to His plan. उसकी योजना के अनुसार। Amen? Amen. He's building His kingdom in the earth, और इस दुनिया में अपने राज को बना रहा है, and He's using us. वो हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। We are His builders. हम उसके कारीगर लोग हैं, बनाने वाले। This is the architect's plan. और ये आर्किटेक्ट की योजना है। I would not know what to do without the architect's printed plan. और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी आर्किटेक्ट की योजना के बिना ना जाए। Hallelujah. हालेलुया। Look at somebody and say, I think I understand that. आप बगल वाले की तरफ मुड़कर बोलिए, आप मुझे समझ में आ रहा है। Now look at somebody else and say, that means I have to work. दूसरे की तरफ मुड़कर के उसको बोले, अब मुझे काम तो करना पड़ेगा। And now say, will you work with me? आप उससे पूछिए, क्या आप मेरे साथ काम करोगे? Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Ask somebody else, will you work with me? किसी और से भी पूछ लो, क्या आप मेरे साथ काम करोगे? Will you pray for me? क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे? Can we make a plan together? क्या हम लोग मिलकर योजना बना सकते हैं? Ask them. पूछो आप, बातचीत करिए। Will you give to the plan? Will you give for the plan? क्या आप इस योजना के लिए कुछ दान देंगे? One more thing before I move on. आगे बढ़ने से पहले एक और बात, Nothing is finished until it is finished. तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ जब तक वो पूरा नहीं हुआ। The lamb who died 2,000 years ago was already slain before. वो मेमना 2000 साल पहले वध हुआ, वो पहले ही वध हुआ। It was finished in God's heart and in His decision process, even in the book called the Book of Life, it was finished. और उसका योजना और उसकी इच्छा जो परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में, वो पहले ही पूरी हो चुकी थी। Before it was finished. ऐसा होने के पहले ही पूरा हो चुका, It was done. ऐसा हो चुका था। If you want victory in your life, अगर आप अपने जीवन में विजय पाना चाहते हैं, you want to accomplish something, आपको कुछ संपादित करना है, your victory is in your decision. आपका विजय आपके फैसला में, निर्णय में है। You can't go around saying, I hope this will happen. और आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा होगा, I think I will lose weight. और मैं सोचता हूँ कि मेरा वजन कम होगा, I think since the doctor said I'm not healthy, I'll eat less rice. और बहन बोलती है कि मैं तंदुरुस्त नहीं है, चावल कम करूँगा। I love chapati, मुझे रोटी पसंद है, but now I have to eat less. अब मुझे उसको कम करना है, I will try. मैं कोशिश करूँगा। No, नहीं, those things do not get you victory. और ये चीजें आपको जय में नहीं ले जाती हैं। It can't be I will try. मैं कोशिश करूँगा नहीं, I think I will do this. मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा। You have to make a decision. आपको एक फैसला करना है। Before you ever change on the outside, you must change how you think. और बाहर से बदलने के पहले आपको ये सोचना है मन में, Because your victory is in the decision. और क्योंकि आपका विजय आपके फैसला में है। And once you make the
decision, you will then give yourself to the process and finally have the outcome of what was already finished before it was finished. और उसको करने के पहले, शुरू होने के पहले आपके मन में एक फैसला होना चाहिए और तब आप एक प्रक्रिया में जाते हैं उसको पूरा करने के लिए। Now, look at somebody किसी की तरफ मुड़िए and say, you were before you were. आप उससे पहले थे, जिससे जब आए उससे पहले से थे। God knew us परमेश्वर हमको जानता था before the creation of this world. दुनिया के नींव के रखे जाने से पहले We were in his heart. हम उसके मन में थे, We were in his thoughts. उसके विचारों में थे। We were in a love relationship with God. हम परमेश्वर के साथ एक प्रेमी रिश्ते में थे। But God did not just see us. परमेश्वर ने केवल हमको नहीं देखा। Psalms 139 says, भजन 139 कहता है, every member of our body was written in God's book. हम में से प्रत्येक का अंग प्रत्यंग उसके जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था। Go read Psalms 139. The whole chapter is good. और आप भजन 139 को पढ़िए, बहुत अच्छा है। And it says all my members were written in his book. और वो लिखता है कि मेरे हर एक अंग का वर्णन उस पुस्तक में लिखा हुआ है। And through a relationship of our parents, God brought us out of a love relationship, through a love relationship, and brought us into this world. और परमेश्वर ने हमारे माता पिता के प्रेमी संबंध के द्वारा जो उसका पहले से था हमें इस दुनिया में लेके आया। God saw you. परमेश्वर ने आपको देखा। God planned you. परमेश्वर ने आपको योजित किया। God wrote about you. परमेश्वर ने आपके बारे में लिख लिया था। And then God created you. उसके बाद परमेश्वर ने आपकी रचना की। In your DNA आपके डीएनए में was every member of your body. आपके शरीर का एक एक हिस्सा था। Whether you would be tall or short. आप ऊंचे व्यक्ति होंगे या नाटे व्यक्ति होंगे। Skinny bone or big bone. आप पतले व्यक्ति होंगे, मोटे व्यक्ति होंगे। Round ears आपका ये कान गोल होगा or pointed ears. और या तो लंबा होगा। Eagle nose. और ये गीद वाला नाक होगा। Nice nose. और चिपटा नाक होगा। All of it was God put in his book. सब कुछ परमेश्वर ने अपने पुस्तक में डाल दिया। The day when we would be born, जिस दिन हमारा जन्म हुआ, he knows the date of our death. वो हमारे जन्म के दिन को जानता है। And he says in the right time, वो बोलता है कि सही समय पर, to the right generation, और सही पीढ़ी में, in the right nationality, और सही देश में, with the right language, और सही भाषा के साथ, with the right color of skin. और सही रंग के साथ, I want to bring them into my world. और मैं अपने दुनिया में लेके आऊं। Hallelujah. Hallelujah. You were before you were. आपके आने से पहले ही आप थे। Hallelujah. Hallelujah. Three things. तीन बातें। Nothing happens till somebody sees it. जब तक कोई नहीं देखता तब तक कुछ नहीं होता। Nothing happens till it becomes specific. और तब तक कुछ नहीं होता जब तक वो विशिष्ट नहीं बन जाता। That's usually in writing. और वो वास्तव में वो लिखाई में होता है। And it's finished before it's finished. और समाप्त होने के पहले उसको पूरा किया जाता है। Doctor's wife, डॉक्टर साहब की पत्नी, nice sari. उनकी बढ़िया साड़ी में है। Beautiful colors. सुंदर रंग। And so do you. आप में से कुछ बहनों के भी। Nice shirt, Pastor Barry. मास्टर बेरी, आपका शर्ट बहुत अच्छा है। Oh, and doctor, you are looking just fine this morning. डॉक्टर साहब आपका तो कहना ही नहीं। But before you could buy the shirt or the jacket, लेकिन आपका कमीज और जैकेट खरीदने के पहले, before you could buy the sari or the shirt, आपको साड़ी खरीदती है, आप शर्ट खरीदते हैं, उसके पहले before you could ride a motorbike आप मोटर बाइक में चढ़ने के पहले or buy that car, एक कार खरीदने से पहले somebody had to make it
first. और किसी को पहले बनाना पड़ता है। We call those diagrams or schematics or prototypes. और हम डायग्राम कहते हैं और उसका चित्र तैयार करते हैं। Before you can buy a car, companies put a lot of money into the design of it. और एक कार आप खरीदते हैं उसके पहले कंपनी उसके लिए बहुत सा पैसा लगा करके उसको एक डिजाइन करता है। And then when they have it perfected, they put it on the market so we can buy it. और जब उसको पूरा तैयार कर लेते हैं तब उसके बाद में बाजार में लाते हैं तब आप खरीदते हैं। It's finished before it's finished. और पूरा होने के पहले ही उसको पूरा किया जा चुका था। And the same way in the kingdom of God. उसी प्रकार परमेश्वर के राज में भी If you want to finish well, अगर आपको पूरा करना है you need to know where the finish line is. और आपको मालूम होना चाहिए कि समाप्ति का रेखा कहाँ है। You must work as teams. आपको एक टीम के रूप में काम करना है You need to write the vision and make it plain. और आपको दर्शन को लिखना है और योजना बनाना है And you need to work towards it in segments of time. और आपको मतलब समय सीमा को निर्धारित करते हुए योजना बनाना है। And if you do that, अगर आप ऐसा करेंगे the race is won before you even start. और दौड़ उस समय पूरी हो जाती है उससे पहले कि आप दौड़ शुरू करते हैं। Because your victory is in the beginning decision. और क्योंकि आपका विजय आपके फैसले की शुरुआत में ही होता है। Hallelujah. हालेलुया। Do you understand those three things? आप तीन बातों को समझते हैं? Yes? हाँ या नहीं? Yes? हाँ? In the back? पीछे वाले Thank you. You're waving at me. हाथ को हिला के मुझे बताइए समझ गए तो। Good. Now you have 5 minutes. अब आपके लिए 5 मिनट और है। You must turn to someone and teach those three things. अब किसी की तरफ मुड़कर 3 बातों को उनको सिखाना है। This is not a test. ये टेस्ट नहीं है। This is just simply practice. ये एक अभ्यास है। Use your notes and do the best you can. आप अपने नोट्स को देख करके उनको सिखाने यानी कि अच्छा से सिखाइए। I cannot hear you. आपकी बात मुझे सुनाई नहीं दे रही है। This place should be very noisy. बहुत जो बातचीत होना चाहिए जोर से तो इतना बड़ा हॉल है इतने लोग बैठे हुए हैं।
Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। How did he do? कैसे उसने किया? How did he do? उसने कैसे किया? He did it right? अच्छा किया? How did you do? आपने कैसे किया? Nice. अच्छा किया। We are going to what we call the biblical basis of mission. हम लोग सेवकाई के बाइबलीय सिद्धांत के बारे में देखेंगे We are going to talk about the mission of creation. और हम लोग एक रचना के बारे में हम लोग देखेंगे The mission of redemption, और छुटकारे के कार्य के विषय में देखेंगे the mission of stewardship, और भंडारीपन के कार्य के विषय में देखेंगे the mission of evangelism, और सुसमाचार का प्रचार कार्य के विषय में हम लोग देखेंगे and the mission of discipleship. और शिष्यता के कार्य के बारे में देखेंगे। That will take us a while. और इसके लिए हमको समय लगेगा। So look at somebody और किसी की तरफ मुड़िए and say no lunch today. Say no lunch today. हाँ, बोले कि आज दोपहर का खाना नहीं है। I am just kidding with you. I want to eat lunch too. मजाक कर रहा था, आपको मत सोचिए मुझे भी खाना है। Are you ready for this? आप इसके लिए तैयार हैं? In the back. पीछे वाले लोग तैयार हैं? You're still with me back there. अभी भी आप मेरे ही साथ हैं ना? Good. बहुत अच्छा। You may be a long way back, but I can see you. आप पीछे तो हैं लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ। In Genesis chapter 1 verse 1, उत्पत्ति के 1:1 में it says, in the beginning God created the heaven and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। In Genesis 1:26, उत्पत्ति 1:26 में and God said, let us make man in our likeness and after our image. और तब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं And let him rule or have dominion over everything. और वो सब कुछ के ऊपर में प्रभुता करे, सबको अपने वश में कर ले। That was the birds of the air, the fish of the sea, the animals on the land. और उसके बाद में समुद्र की मछली, आकाश के पंछी और पृथ्वी के जानवर पैदा हुए। There are some people who have forgotten that God is a God of mission. कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर एक काम करने वाला परमेश्वर है, एक मिशन करने वाला परमेश्वर We है। say three things about Genesis 1:1. और उत्पत्ति 1:1 के बारे में 3 बातें कहते हैं। God is creator. परमेश्वर रचयिता है। He calls into being out of nothing. और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पर उन चीजों को अस्तित्व में आने के लिए बुलाता है। He is creator God. और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। There's only one creator. एक ही सृष्टिकर्ता है। We are taught to speak the word of God, हमें परमेश्वर के वचन बोलने के लिए सिखाया जाता है। but we speak in accordance with his word. और हम उसके वचन के अनुसार बोलते हैं। There is only one all-powerful God who calls things out of nothing. एक ही शक्तिशाली परमेश्वर है जो बिना कुछ के कोई चीज को अस्तित्व में लाता है। We also say that God is the architect. और तब हम कहते हैं कि परमेश्वर आर्किटेक्ट भी है। Several times this morning, और सुबह के समय कई बार I've seen God have a book. हमने देखा परमेश्वर के पास एक पुस्तक है। We've said God believes in writing. और हम कहते हैं कि परमेश्वर लिखने पर विश्वास करता है। That's what architects do. और ये आर्किटेक्ट ऐसा ही करता है। If God is a plan and a vision of creation, अगर परमेश्वर के पास में सृष्टि का एक योजना है, if there was written in the Lamb's book of life, a lamb before the foundation of the world, और जगत की उत्पत्ति से पहले मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखी हुई है। if there is a book that bears in it
every detail of my being brought into this world. और एक ऐसा पुस्तक है दुनिया में आने के पहले मेरे बारे में सारी बातें विस्तृत रूप में लिखी गई हैं। And I think it's safe to say that God is also architect. और तब ये आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर एक आर्किटेक्ट है, Because he created this world with a design. और वो एक आर्किटेक्ट या शिल्पकार है क्योंकि उसने उसका एक आकार और प्रकार बनाया With things in an order of functioning. और जिस तरह से आज चीजें काम कर रही हैं। And so we say he's not only creator, he is architect. और वो केवल रचनाकार नहीं, वो शिल्पकार है। But we also say God is the builder. और हम कहते हैं कि परमेश्वर बनाने वाला भी है। What is he building? और किस बात को बना रहा है? He is building his kingdom in the earth. धरती पर अपने राज को बना रहा है। What is God's mission? परमेश्वर का कार्य क्या है? His mission is redemption. उसका कार्य है छुटकारा देना। What is redemption? छुटकारा क्या है? Redemption is God building his kingdom in the earth. छुटकारा परमेश्वर के राज को इस धरती पर बनाना है। In just a few minutes I'll talk about the mission of redemption. और छुटकारे के कार्य के विषय में 1 मिनट के बाद मैं बात करूंगा। But when God had a plan and he said, I'm going to create the earth, he had a purpose for it. और जब परमेश्वर के पास में एक योजना था एक धरती को स्थापित करने को, उसके एक कारण था, एक उद्देश्य था। His purpose was to bring heaven into his new creation. और उसका जो मकसद था स्वर्ग को नई सृष्टि में लाना। But it was not just to bring it through angelic beings. और वहाँ पे केवल स्वर्गीय प्राणियों को नहीं करना, आत्मिक प्राणियों की सृष्टि नहीं था। His plan was to create man who would have relationship with him. उसकी योजना में एक मनुष्य था जो परमेश्वर के साथ में संबंध स्थापित करेगा। A man that he would create in his image and likeness. एक ऐसे मनुष्य की स्थापना करेगा जो उसके स्वरूप और समानता में हो। That the character of God would be put into man, and on the basis of God's character, he could share his power to rule in the earth. और परमेश्वर के सारे चरित्र मनुष्य के अंदर में हैं और उसके पास में कुछ प्रभुताएं भी हैं ताकि वो दुनिया के अंदर में राज कर सके। So we say God is creator, God is architect, and God is builder. और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर रचयिता है, परमेश्वर शिल्पकार है और परमेश्वर बनाने वाला है। What is man? मनुष्य क्या है? Man is the very crowning glory of God's creation. और मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि का ताज है, मुकुट है। I like to say it like this. मैं उसको ऐसे कहूँगा, You are the very best that God can do. आप परमेश्वर जो सर्वोत्तम उत्तम से उत्तम जो परमेश्वर कर सकता है वही आप हैं। Man can create things like the Taj Mahal. मनुष्य ताजमहल जैसे चीजों को बना सकता है। God has created majestic scenery and waterfalls and mountains in the earth. और दुनिया के अंदर में अद्भुत पर्वत श्रृंखलाओं को और जलप्रपात जैसी चीजों को बनाया है। I have been privileged to see some of those. और मुझे नसीब मिला उन बातों को देखने के लिए। But when I consider the creation of man, जब मैं मनुष्य की सृष्टि के बारे में विचार करता हूँ and realize that God has given us the ability of reason, और मैंने इस बात को महसूस किया कि परमेश्वर ने हमें तर्क शक्ति दिया है, intuition, और इन समझने का प्रवृत्ति, the ability through a living soul to communicate with the Creator God. एक जीवित आत्मा प्राणी के द्वारा परमेश्वर के साथ में एक संबंध, And that God put all of his confidence and trust in the first created man and woman, that he would give them such authority to rule over all the earth. और पहले और स्त्री पुरुष के ऊपर उसका इतना भरोसा था कि उनके अंदर में पूरे दुनिया के अंदर में शासन करने का अधिकार को भी दे दिया। I said to Pastor Barry the other day, और पास्टर मेरी से मैंने बातचीत किया दूसरे दिन। we were in the mountains in the north and we were able to see afar the Himalayas. और जब हम लोग उत्तर भारत में थे जहाँ पे हम लोग हिमालय पहाड़ की श्रृंखला को देख सकते थे, We were able to look from the heights down over the valleys. और हम लोग पर्वत श्रृंखला से नीचे तराई में देख रहे थे। And he got his camera out.
और हम कैमरा निकाले, and he has a good camera. उनके पास में बढ़िया कैमरा है। And I said, Pastor, मैंने कहा पास्टर साहब, those pictures cannot tell it. और ये तस्वीर हमें कहे बता नहीं सकती है। You can have the greatest lens in the world, और दुनिया में बहुत अच्छा लेंस आपके पास हो सकता है, and it doesn't come close to the lens God created. और उनकी तुलना परमेश्वर के सृष्टि की गए लेंस के साथ में नहीं की जा सकती। To see it with your own eye, आप अपनी आंखों से देखें the intricacies that God put in the human creation. और मनुष्य के सृष्टि में परमेश्वर ने क्या-क्या नहीं डाला है। You are the very best God can do. परमेश्वर जो उत्तम से उत्तम जो कर सकता है वही आप हैं। Hallelujah. हालेलुया। God values us. परमेश्वर के लिए आपका एक मूल्य है। He loves us आपसे प्यार करता है more than anything in His creation. उसके सृष्टि में सब कुछ से बढ़ करके। Sister Simona, सिस्टर समोला, you're not here by chance. आप अचानक से यहाँ नहीं आ गए। You're not even in India by chance. आप भारत में भी अचानक से नहीं, संजोग बस नहीं आ गए। You are here by God's design. परमेश्वर की वो सोच के अनुसार यहाँ पे हैं। Given intelligence, आपकी बुद्धि, given these abilities that only human beings have. और वो सारी क्षमताएं जो मनुष्यों को दी गई हैं। Now look at somebody by you. आपके बगल के किसी और के को देखिए, Look at them. उनको देखिए, Go ahead, laugh. थोड़ा सा हंसिए उनके साथ। And while you're laughing, say, you are the best God आप can do. पूछे क्यों हंस रहे हैं, तो बोला कि परमेश्वर के आप बेस्ट हैं। Amen. आमीन। So man is the crowning glory of God's creation. सृष्टि में मनुष्य महिमा का एक ताज है परमेश्वर के लिए। Created in the image and likeness of God. और परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया। Now look here. देखिए इधर, यहाँ देखिए, ऊपर देखिए। God does not have ears, परमेश्वर के कान नहीं है, but He hears. लेकिन वो सुनता है। He does not have a nose, उसके पास में नाक नहीं है, but He smells. लेकिन वो फिर भी सूंघता है। He does not have a hand, उसका हाथ नहीं है, but He touches. लेकिन फिर भी छूता है। He does not have feet, उसका पैर भी नहीं है, but He walks. लेकिन वो चलता है। He does not have a tongue, उसका जीभ नहीं है, but He talks. लेकिन वो बात करता है। Jesus said God is a spirit. यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर एक आत्मा है, He is not a man. वो एक मनुष्य नहीं है। When it says we are created in His image and likeness, it's not talking about physical appearance. और जब हम उसके स्वरूप और समानता की बात में करते हैं तो ये शारीरिक बात नहीं है। It is talking about the internal characteristic of God. ये परमेश्वर के अंदरूनी चरित्रों की बात है, Not the divine characteristics. ये अलौकिक चरित्र नहीं। Man was not created knowing everything. और सब कुछ जानने के रूप में उसको नहीं बनाया गया। He was limited in body. He was not everywhere at once. और वो शरीर में उसको सीमित किया गया, वो एक जगह समय पर सब जगह नहीं रह सकता। He is not created with all wisdom and all knowledge. और उसको सारी बुद्धि और समझ के साथ नहीं बनाया गया। But he was created with the moral character of God. और परमेश्वर के नैतिक चरित्र के साथ उसको बनाया गया। It's called holiness. इसको कहते हैं पवित्रता। Without sin. बिना पाप के, To live forever. हमेशा जीने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। What is holiness? पवित्रता क्या है? It is love. ये प्रेम है, It is joy. ये आनंद है, It is peace. ये शांति है, It is goodness. ये भलाई है, It is kindness. ये कृपा है, What is holiness? ये पवित्रता है। It's what I told you this morning. इसी के बारे में सुबह को मैंने आपको कहा, It's the fruit of the Spirit. ये आत्मा के फल हैं। The fruit of the Spirit is what? आत्मा का फल क्या है? It's the character of God given to man. परमेश्वर का वो चरित्र जो मनुष्य को दिया गया है। Hallelujah. Hallelujah. And because of that holy character, इस पवित्र चरित्र के दो कारण I से am in relationship with a holy God. मेरा संबंध पवित्र परमेश्वर के साथ होता है। A God so holy he can have no fellowship with sin.
और परमेश्वर इतना पवित्र है कि पाप के साथ उसका संगति हो नहीं सकता। So holy he cannot even look upon sin. वो इतना पवित्र है कि पाप को देख भी नहीं सकता। When Jesus bore the sins of humanity on the cross, जब मानव के सारे पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया, the Father God could not watch this. पिता परमेश्वर उसको देख नहीं सका। He took our sins. उसने हमारे पापों को ले लिया, He bore our iniquities. हमारे अधर्म को उठा लिया, He took our sickness, हमारे बीमारी को ले लिया, our disease, हमारे रोगों को, our sorrow. हमारे दुखों को। And at noonday, और एक नया दिन, the sky was dark. और अंधेरा हो छा गया, And Jesus Christ, और यीशु मसीह, my God, why have you forsaken me? उसने पुकार का कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया? There was a separation of the Son and the Father because of sin and sickness and disease. And all that had come on this world because of man's disobedience. और मनुष्य के अनज्ञाकारिता के कारण आई बीमारी, रोग और पाप के कारण पिता और पुत्र का जुदाई हो गया, अलगाव हो गया। But then Jesus said, तब यीशु मसीह ने कहा, into thy hands I commit my spirit. तेरे हाथों में अपने आत्मा को सौंपता हूँ। It is finished. पूरा हुआ। What is finished? क्या पूरा हुआ? The relationship is done. एक रिश्ता कायम किया गया Redemption is accomplished. और छुटकारा पूरा हुआ। And all redemption is restoration. और ये पूरा छुटकारा पुनर्स्थापन है। I'll talk about that again in a minute. एक मिनट के बाद मैं उसके बारे में बात करूंगा। So here is man, यहाँ पे मनुष्य है, created in God's image and likeness. परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया हुआ, The holy character of God परमेश्वर का पवित्र चरित्र, that becomes the foundation for anointing. और ये आपके अभिषेक का आधार बन जाता है। I said anointing. मैंने कहा अभिषेक। God's anointing was for everyone. परमेश्वर का अभिषेक हर एक के लिए था। It was to pass from Adam and Eve to their children. और पहले आदम, हवा और उनके बच्चों के लिए था। After the fall of man, मनुष्य के पतन के बाद in the Old Testament, पुराने नियम में prophets, priests, and kings were anointed. और नबी, राजा और याजकों को अभिषेक दिया जाता था। What was the anointing? ये अभिषेक क्या था? It was the sign of God's choice. और ये इस बात को दिखाती है परमेश्वर ने जो चुना है। And it gave them the legal right to function in a position. और एक काम को करने का उनके पास वैधानिक अधिकार है। And if they did not have the ability to function, they were given at least the ability to learn how to function in that anointing. और अगर उस काम को कर नहीं सकते थे तो उनको सीखने का ये अवसर मिलता था कि उस अभिषेक में होकर काम करें। Then we come to the new covenant. और तब उसके बाद हम नई वाचा में आते हैं। And now not just prophet, priests, and kings can be anointed, और वहाँ पे केवल राजा, याजक और नबी का अभिषेक नहीं होता है, but every believer. लेकिन एक एक विश्वासी का। Again, the original plan of Genesis, और ये परमेश्वर का मूल योजना, through coming into a relationship with Jesus, और ये यीशु मसीह के साथ रिश्ता में आने के कारण से having the character of God restored in us, हमारे अंदर में परमेश्वर का चरित्र स्थापना होता है। Jesus says, all power is given unto me. यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, Go therefore. इसलिए तुम जाओ। The words power उस अधिकार का शब्द and authority और अधिकार और सामर्थ्य speak of two things. दो बातें कहती हैं। The legal right to function वैधानिक अधिकार काम करने का and the ability to function. और काम करने का क्षमता। And I have been given the legal right परमेश्वर ने मुझे वैधानिक अधिकार दिया है as a follower of Jesus Christ यीशु मसीह का अनुयायी के रूप में to speak in His name. उसके नाम से मैं बोल सकूं। हालेलुया। When I get up in the morning, जब मैं सुबह में उठता हूँ, I don't say, Father, do I have the right to work? मैं नहीं कहता हूँ कि पिता क्या मेरे पास काम करने का अधिकार है। When I wake up in the morning, जब मैं सुबह में उठता हूँ, I am anointed.
मैं अभिषेक किया गया हूँ। I will walk in my legal rights. मैं अपने वैधानिक अधिकार में चलूंगा। I will walk in my ability. मैं अपनी क्षमता में चलूंगा। And my ability has come through the Holy Spirit. और मेरी क्षमता पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। Because what I cannot do, the Holy Spirit can do through me. क्योंकि जो चीज मैं नहीं कर सकता मेरे द्वारा पवित्र आत्मा कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। In Acts 1:8, प्रेरित 1:8 में you shall receive the power. तुम सामर्थ को पाओगे। What is this? इसका मतलब क्या है? The ability. एक क्षमता। You're given the legal right, आपको एक अधिकार दिया गया but the है, Holy Spirit will come upon you. लेकिन जब पवित्र आत्मा And तुम पर you आए shall receive power और तब तुम सामर्थ को पाओगे to be my witnesses. और तुम मेरे गवाह हो ठहरोगे। Hallelujah. In Jerusalem यरूशलेम में पहले, and Judea तब यहूदिया में, and Samaria समारिया में and the rest of the world. और बाकी दुनिया में। Hallelujah. Hallelujah. If we are going to do God's work, अगर हम परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं, we need His anointing. हमें उसके अभिषेक की आवश्यकता है। Just like Adam needed his anointing. जिस प्रकार आदम को उसके अभिषेक की आवश्यकता But we है, must have the foundation of holiness and the character of Christ. और मसीह के चरित्र और पवित्रता के आधार के द्वारा। You are listening too well. और आप बहुत अच्छा से सुन रहे हैं। Well, I'm very quiet, but I know you're listening. आप तो शांत हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सुन रहे हैं And I see you writing. और आपको लिखते हुए देख रहा हूं। Look at somebody and say, there's more. आप बगल वाले को बोले और भी है। Hallelujah. हालेलुया। Let me talk about the mission of redemption that I've already begun to talk about. और छुटकारे के कार्य के विषय में मैं बात करना शुरू कर चुका हूं। You know the story of Genesis 1, 2, and 3. You know the story of Genesis chapters 1, 2, and 3. आप उत्पत्ति 1, 2, 3 की कहानी को जानते हैं। And in that story is what we call the fall of man. और इस कहानी में मनुष्य के पतन को हम लोग पाते हैं। By an act of disobedience, एक सक्रिय अनाज्ञाकारिता के द्वारा। the Apostle Paul said that death passed on all men. और पौलुस प्रेरित कहता है कि सब मनुष्यों में मृत्यु आ गई। God is on a mission of not only building His kingdom in Genesis 1, He's on a mission of redemption. और धरती पर अपने राज की स्थापना करने का एक कार्य परमेश्वर के पास नहीं है, मनुष्य के छुटकारे का भी कार्य उसके पास है। Redemption means to buy back. और छुटकारे का मतलब है वापस खरीदना। It means to restore what was lost. जो चीज खो गया था उसको वापस हासिल करना। If somehow you can see this in your mind, किसी प्रकार आप अपने मन में देख सकते हैं that God had promised, He told them, if you eat of the tree of knowledge of good and evil, you will surely die. और परमेश्वर ने उनको कहा था जब तुम भले बुरे के वृक्ष का फल खाओगे तुम निश्चय मरोगे। Eat the tree of life from the other trees, no problem. और तुम जीवन के वृक्ष का दूसरे वृक्षों का फल को खाओ, कोई बात नहीं। Satan, who could not gain the authority, the dominion of rulership in heaven, has been cast out to earth. और स्वर्ग शैतान जो स्वर्ग में अधिकार और सामर्थ को हासिल नहीं कर सका, उसने सोचा कि चलो मैं पृथ्वी में उसको हासिल करने का प्रयास करूं। He is very aware that God has created man, और इस बात को भली भांति जान गया था कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, giving man the legal right to rule in the earth, और मनुष्य को पृथ्वी में राज करने का वैधानिक अधिकार दिया, given him the ability और उसको क्षमता भी दे दिया है to bring the rule of heaven into the earth. और परमेश्वर के नियमों को धरती पर लाए और लागू करे। We must understand something here. हमें यहाँ पे कुछ बातों को समझना है। When God created man, जब उस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, He breathed into man the breath of life. उसने उसके अंदर में जीवन का श्वास फूंक दिया Man becomes a living soul. और वो जीवता प्राणी बना। Life is in the blood. और जीवन वो खून में होता है। This is a scriptural principle.
ये पवित्र शास्त्र का सिद्धांत है। Why is life in the blood? और जीवन खून में क्यों है? Because when God breathed into man the breath of life, he became a living soul. He immediately, at the same time, created man's blood to flow. और जब परमेश्वर ने उसके रत्नों में श्वास फूका, जीवन के श्वास को फूका, तुरंत उसके अंदर में रक्त संचार चालू हो गया। There is no death in that blood. और उस लहू में कोई मृत्यु नहीं है, Because that blood is pure. क्योंकि वो रक्त शुद्ध रक्त है। There is no sin. उसमें कोई पाप नहीं है, There is no hate. उसमें कोई प्रकार का बात नहीं है, There is no greed. वहाँ पे कोई घृणा नहीं है, नफरत There नहीं है, is no unfaithfulness. वहाँ पे अयोग्यता नहीं है, There is only purity. वहाँ पे केवल शुद्धता है। And in that blood, life is eternal. और उस जीवन में, उस लहू में अनंतता है। But Satan knows that he is still wanting to have the dominion he could not get in heaven. और वो मतलब शैतान को इस बात को जानता था कि अब वो स्वर्ग में तो जा नहीं सकता है। Could it be that Satan begins to think, शायद वो शैतान ये सोचने लगा, I couldn't get it from God, परमेश्वर से तो मुझे मिला नहीं, but maybe I could get it from man. शायद मैं मनुष्य से उसको हासिल कर लूं। And so he tempts the woman. और इसलिए स्त्री की परीक्षा करता है। The woman gives to the man and he eats. और स्त्री ने पुरुष को दिया और उसने खाया। And immediately, और तुरंत ही, he does not die physically. और ये शारीरिक तौर पर नहीं, That will come later. उसके बाद में ये हुआ। Death is separation. और मृत्यु ने अलगाव को लाया। James says, as the body without the spirit is dead, और जिस प्रकार याकूब कहता है कि आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ है, so what died? और वो मर गया, The spirit of man. मनुष्य का आत्मा मरा। God's spirit in him. उसके अंदर में जो परमेश्वर का आत्मा था, Man then becomes dead in sin. और तब मनुष्य पाप में मृतक बना। Because by his act of disobedience, और इस अनाज्ञाकारिता के द्वारा that which was natural to be righteous becomes abnormal. और जो धर्मी था वो मतलब अब असामान्य हो गया। And by one act of disobedience, what becomes normal is Satan's character. और मतलब एक अनाज्ञाकारिता के काम के द्वारा ये अब शैतान का चरित्र यहाँ पे आ गया। He is a thief. वो चोर है, He steals. वो चोरी करता है, He destroys. वो नष्ट करता है, He lies. वो झूठ बोलता है। Satan is selfish. शैतान स्वार्थी है। Everything opposite to God's character. परमेश्वर के चरित्र का बिल्कुल उल्टा होने लगा। And when man sins and acts in disobedience, एक मनुष्य के पाप और अनाज्ञाकारिता के कारण he forfeits the character of God. और परमेश्वर के चरित्र को खो देता है। God is no longer his spiritual father. अब परमेश्वर उसका आत्मिक पिता नहीं रह गया। Satan is now his father. अब शैतान उसका बाप बन गया। He has been transferred from God's kingdom of light to the kingdom of darkness. अब परमेश्वर के ज्योति के राज में से उसका स्थानांतरण अंधकार के राज में हो गया। And when that happens, और जब ऐसा होता है, man forfeits his legal right to rule. और मनुष्य अपने जो वैधानिक अधिकार, राज करने के वैधानिक अधिकार को खो बैठता है। What should have gone back to God, जो वापस परमेश्वर के पास जाना चाहिए, by a legal act of forfeiting through disobedience, becomes Satan's authority. और एक मतलब अनाज्ञाकारिता के कारण जो परमेश्वर के पास होना चाहिए, वो अधिकार शैतान के पास चला गया। Listen to me. मेरी बात सुनिए। If I have God's character, I have God's authority. अगर मेरे पास परमेश्वर का चरित्र है, मेरे पास परमेश्वर का अधिकार है। If I have Satan's character, I have Satan's authority. अगर मेरे पास शैतान का चरित्र है, मेरे पास शैतान का अधिकार है। Because taking his character gives him the legal right to rule in this world. क्योंकि शैतान एक ऐसा चरित्र है जिसके पास में वैधानिक अधिकार है राज करने का। But we have something very miraculous spoken about in Genesis 3. लेकिन हमारे लिए उत्पत्ति 3 में एक चमत्कारिक बात लिखी गई है। God is still on a mission. और परमेश्वर अभी भी कार्य में है। Man's sin did not change God's vision.
और मनुष्य के पाप ने परमेश्वर के दर्शन को नहीं बदला। God didn't say, what am I going to do now? ओ अब परमेश्वर नहीं करने लगे अब मैं क्या करूं? I guess I'll get a new vision. वो बोलता है कि शायद मुझे नया दर्शन लेना पड़ेगा। He did not do that. परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। He has one vision. उसका एक ही दर्शन है It has never changed. और वो कभी नहीं बदला, To bring his kingdom to rule in the earth. और दुनिया में अपने राज को ला करके राज करे। Hallelujah. हालेलुया। Now there is only one thing एक ही काम है that can appease the justice demand of God. और परमेश्वर का एक न्यायिक मांग है। Life is in the blood. अब ये जीवन रक्त में है। Without the shedding of blood is no remission of sin. बिना लहू बहाए पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं, But not just any blood. और कोई भी लहू नहीं, The blood of bulls and goats, no. और ये बैलों और बकरियों का लहू नहीं, It cannot do it. ये काम नहीं कर सकता। The blood of man एक मनुष्य का लहू नहीं, has death in it. जो मर चुका है It cannot do it. ये उसका काम नहीं कर सकता। And so in Genesis 3:15, इसलिए उत्पत्ति के 3:15 में God looks at a serpent परमेश्वर सांप की ओर देखता है and he speaks to Satan और शैतान से कहता है, and he वो says, कहता है I am going to put enmity between your seed and the seed of the woman. मैं तुम्हारे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। You're going to bruise the heel of the woman's seed. तुम स्त्री के वंश के एड़ी को डसोगे, But the seed of the woman is going to bruise your head. लेकिन स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। Now here is a marvelous thing. यहाँ पे एक अद्भुत बात है, There is no such thing as the seed of a woman. स्त्री के वंश के समान और कुछ नहीं है। The seed that carries the blood comes from a man. और जो वंश उत्पन्न करता है वो मनुष्य के अंदर, इस पुरुष के अंदर में है। A woman gives a child its body and its nourishment. और उस बच्चे को एक शरीर और पोषण स्त्री देती है। So what is God saying here? यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहा है? He's saying a woman is going to bring forth a child. वो कहते हैं कि एक स्त्री बच्चे को जन्म देगी And that child will be birthed in her without knowing a man. और वो बच्चा बिना पुरुष के स्त्री के द्वारा पैदा होगा। The seed in this woman is going to be placed there by a miracle. और एक चमत्कार के तरीके से ये जो वंश को स्त्री के गर्भ में डाला जाएगा। How many of you believe in miracles? आप में से कितने लोग चमत्कारों का विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। And in Matthew and in Luke, और मत्ती में और लूका के सुसमाचारों में there is a story वहाँ पे कहानी है of an angel Gabriel who comes to a girl. और गब्रिएल स्वर्गदूत एक लड़की के पास आता है। He says, Mary, उसको कहते हैं मरियम, you are highly favored. और तुम पर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह है। You are going to be with child. तुम एक बच्चे को जन्म दोगे। And she says, how can this be? और वो कहने लगी वो कैसे हो सकता है? He said, with God all things are possible. और वो कहता है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। Hallelujah. हालेलुया। Nothing is impossible with God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। You see, if God can create man the first time, और अगर मनुष्य को पहली बार परमेश्वर ने बनाया, breathe into him his seed, और जब उसके अंदर वंश डाला, बीज his डाला, character, उसके चरित्र को डाला, call him, you're my image and likeness, उसके स्वरूप और समानता में, breathe into him the breath of life, और जीवन के श्वास को उसने रत्नों में फूका, create his bloodline pure. और उसके शुद्ध रक्त को बनाया। If God can do it one time, अगर एक बार परमेश्वर ऐसा कर सकता है, God can do it 2 times. वो परमेश्वर 2 बार भी कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। And he said to Mary, और वो मरियम को कहता है, the Holy Spirit will come on you पवित्र आत्मा तुम पर आएगा and place the seed in you. और तुम्हारे अंदर में एक बीज आएगा। And that's when John writes, the Word became flesh. और यूहन्ना कहता है कि वचन देहधारी हुआ। Hallelujah. Hallelujah. And is planted in Mary's womb in her body. और मरियम के कोख में, मरियम के गर्भ उसके शरीर में आया। And one more time, एक और बार God breathes परमेश्वर फूंकता है the breath of life. जीवन के श्वास को। Hallelujah. हालेलुया। One more time.
time, he breathes एक और बार वो फूंकता है and he creates blood. और वो रक्त की सृष्टि करता है, And this is holy blood. और ये पवित्र लहू है, This is pure blood. ये शुद्ध लहू है, Because there's only one kind of sacrifice क्योंकि एक ही बार एक ही बलिदान के द्वारा that can satisfy the justice demand of a holy God in heaven. पवित्र परमेश्वर के न्यायोचित मांग को पूरी कर सकता है, And that is the blood of a lamb. और वो एक मेमने का लहू होगा। Peter 1:18, 1 Peter 1:18. पहला पत्रस 1:18, A lamb without spots and without blemish. निर्मल और निष्कलंक लहू मेमने के लहू से, A lamb in which there is no death. और जिस मेमने में कोई मृत्यु नहीं, A lamb that is incorruptible. और मेमना जो बिल्कुल भ्रष्ट नहीं हुआ है, And blood that is eternal again. और वो जो अनंत लहू उसमें है, And so out of eternity past और भूत काल के अनंत से into time present और ये वर्तमान समय में and for all eternity future, और भविष्य में के अनंत तक there is a lamb एक मेमना है whose blood atones for us, जिसका लहू हमारे पाप Hallelujah. प्रायश्चित करता है, whose blood is able to restore all things. और उसका लहू सारी बातों की पुनर्स्थापना कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। All redemption is restoration. और हमारा छुटकारा ये हमारा पुनर्स्थापना है। What did man lose in the garden? और परमेश्वर ने बाग में क्या खोया? I've read several different people. हमने अलग-अलग पुस्तकों को पढ़ा है। Some of them will give you a list of almost up to 60 or 70 pillars of society. और 6 और 7 जो सामाजिक मीनारों को बताते हैं। I'm a simple preacher and teacher. मैं एक साधारण प्रचारक और सिखाने वाला हूँ। 60 is too much for me. 60 का लिस्ट बहुत बड़ा है। I like Ed Silvaso. Ed Silvaso. He's a missionary pastor. वो मिशनरी पास्टर है जी। His name is Ed Silvaso. एडसन वास्तर। He's from South America. वो दक्षिण भारत अमेरिका से हैं। He talks about 3 pillars of society. और सोसाइटी के 3 स्तंभों के बारे में बताते हैं। And that these 3 pillars of society is what man was given rule over, that was given to Satan. और जो मनुष्य के समाज में राज करने वाले 3 स्तंभ जो मनुष्य को दिया गया था, वो शैतान के हाथ में चला गया। Education, शिक्षा, the marketplace, व्यवसाय, बाजार, and government. और सरकार। Do you realize that Adam was the first president of a theological seminary in the world? आदम सबसे पहले जो ईश्वर विद्या का जो कॉलेज था, उसका वो प्रेसिडेंट था। Do you realize that Eve was the first successful businesswoman? और उसके बाद हवा सबसे पहली सफल व्यवसायी स्त्री थी। And over the government, Adam was president. और सरकार में आदम प्रेसिडेंट था। And there was nothing wrong with any of these. और इनमें कोई गलती नहीं है। Because those things in themselves are not good or evil. और ये चीजें अपने आप में अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है। What is good or evil is the heart of a person. और ये खराब और अच्छा क्या है? इंसान का है दिल। If your heart is right, you can have a good business. अगर आपका दिल सही होगा तो आप अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। If not, you will cheat people. और नहीं तो आप लोगों को ठगेंगे। If your heart is right, अगर आपका दिल साफ है, you can be a good educator. आप अच्छा पढ़ाने वाले होंगे। If it's not right, अगर अच्छा नहीं है, you will teach philosophy. और तब आप वहाँ दर्शन शास्त्र सिखाओगे। And you'll teach things that are not true. और जो चीजें सही नहीं है उनको आप सिखाओगे। If your heart is right, अगर आपका दिल अच्छा है, you can be in government as a leader. आप सरकार में एक अगुवा बन सकते हैं। And you can have good rulership. और एक अच्छा शासन कर सकते हैं। But if your heart is not right, लेकिन अगर आपका दिल सही नहीं है, well, we know the rest
rest of that story. और उसके बाद बाकी कहानी को हम सब जानते हैं। Amen? Amen. And so what happened is all these things became corrupted because Satan became the ruler of them. और ये सारी बातें तीनों चीजें भ्रष्ट इसलिए हो गई क्योंकि शैतान शासक बन गया। We know this even from the New Testament, हम लोग नए नियम से इस बात को जानते हैं that we have been living, Ephesians 2, that we were living according to the prince and power of the air. और हम आकाश के अंधकार के हाकिम के वश में थे। To the Corinthians, Paul said, the God of this world has blinded their mind that they cannot understand. और कोरिन्थियों को पौलुस कहता है कि शैतान ने उनकी आंखों को अंधी कर दिया है कि वो देख ना सके। In Matthew chapter 5, मत्ती के 5 अध्याय में Satan comes to Jesus यीशु मसीह के पास वो आता है in one of the temptations of the wilderness. और जंगल के उन परीक्षाओं के घड़ी में He says, Jesus, वो कहता है यीशु you see all these kingdoms and their glory. ये सारे राज और उसके अधिकार को देखो You see all their business. और सारे व्यवसायों को देखो You see all the government. और सारे सरकारों को देखो You see all the education systems. और सारे शिक्षा संस्थानों को देखो You see all their glory. और सारी महिमा को देखो। If you will worship me, अगर तुम मेरी आराधना करोगे I'll give all these kingdoms back to you. ये सारे राज मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। Jesus did not argue with him यीशु मसीह ने उसके साथ में वाद विवाद नहीं किया because Jesus knew something. क्योंकि यीशु मसीह एक बात को जानता था। And when you know something, you don't have to argue with Satan. अगर आपको कुछ बात मालूम है तो शैतान से आपको वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। When you know who you are, when you know your authority, when you know what is coming, you don't have to argue with Satan. अगर आप जानते हैं आप कौन है, आपके पास में क्या अधिकार है, तो आप शैतान के साथ तर्क वितर्क नहीं करेंगे। He just said, it is written, उसने कहा केवल कि ये लिखा हुआ है, thou shalt worship the Lord thy God, तू अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करेगा and him only will you serve. और केवल उसी की सेवा करोगे। And Satan left him और शैतान उसको छोड़ के चला गया। because Jesus knew क्योंकि यीशु मसीह जानता था that in 3 years' time, 3 वर्षों के दरमियान he would do something to restore all the kingdoms back to his Father. एक ऐसा काम करेगा जिसके द्वारा सारे राज परमेश्वर के को वापस मिल जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Now look at somebody and say, all redemption is restoration. और ये छुटकारा हमारा पुनर्स्थापना है। You say it? आप अपने पड़ोसी को बता दीजिए छुटकारा ये पुनर्स्थापन है। Why do we go carrying the glory of God? हम क्यों परमेश्वर की महिमा को लेकर के जाते हैं? Why did I take time to demonstrate the multiplication of the 2-2-2 principle? और 2-2-2 के सिद्धांत को मैंने क्यों यहाँ पे करके दिखाया? Because the gospel of the kingdom is this. क्योंकि राज का सुसमाचार यही है। We are to take the kingdom of God and its rule to the people. हमें परमेश्वर के राज को लोगों के बीच में लेके जाना है। When the majority of a linguistic group become believers, और ताकि अधिकांश भाषा भाषी लोग विश्वासी बन जाएं, then the majority in that society will have the kingdom of God ruling in them by obedient believers. और जब उस सोसाइटी के अधिकांश लोग विश्वासी बनकर के परमेश्वर के राज के सिद्धांतों में जिएंगे, because the majority of the people are Christians. क्योंकि अधिकांश लोग विश्वासी बन गए हैं। Now look at somebody and say, followers of Jesus should obey this book. और कहना चाहिए कि यीशु के विश्वासियों को इस पुस्तक की बात माननी चाहिए। Amen? आमीन। If we obey this book, अगर आप इस पुस्तक की बात को मानेंगे, then we're bringing the kingdom of God. ये परमेश्वर के राज को वहाँ लाएंगे। And the rule of the king comes to them through our lives. और राजा का शासन हमारे जीवन के द्वारा आता है। So when the majority of the people are followers of Christ, अगर अधिकांश लोग यीशु मसीह के चेले बन the जाएंगे, majority of your educators are followers of Christ, अधिकांश शिक्षा देने वाले मास्टर मिस्ट्रेस लोग यीशु मसीह के अनुयायी होंगे, the majority of your business
people are followers of Christ. अधिकांश व्यवसायी लोग यीशु के पीछे चलने वाले व्यवसायी हैं, And the same with those who are leading the government. और उसी प्रकार सरकार के मंत्रीगण भी। That is how we bring the kingdom of God to rule in the earth. इसी प्रकार से हम परमेश्वर के राज को धरती पर लाते हैं। But it begins with me. ये लेकिन इसकी शुरुआत मुझसे होती है, It begins with an individual that we demonstrated. और ये एक व्यक्ति से शुरू होता है जिसको हमने यहाँ पे देखा था। And the kingdom grows तब उसके बाद राज बढ़ते जाता है, as followers multiply. जिस प्रकार चेलों की गिनती बढ़ती जाती है, Churches are planted and churches multiply. और कलीसियाओं की स्थापना होती है, कलीसियाओं का गुणन में बढ़ोतरी होती है। Hallelujah. Let me tell you a story. एक कहानी ये बताऊंगा, It's in Luke chapter 19. लूका के 19 अध्याय में है कहानी। There's a little short Indian man. एक छोटा आदमी था, Yeah, short Indian man. एक नाटा हाथी आदमी, He couldn't see over the tall people, और वो लंबे लोगों को यह देख नहीं सकता था, but he wanted to see Jesus. लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था, And he climbed up in a tree. और एक पेड़ पे चढ़ गया। And Jesus saw him. अब यीशु मसीह ने उसको देख लिया। And Jesus said, Zacchaeus, come down. उसको यीशु मसीह ने बोला, जक्कई तू नीचे उतर आ, Today I'm going to your house. आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। They get in the house of Zacchaeus. तो दोनों जक्कई के घर में पहुंचे, And Zacchaeus says, Lord, और जक्कई कहने लगा, हे प्रभु, anything I have taken wrong from people, I've given it back fourfold. अगर मैंने किसी से भी गलत तरीके से वसूली किया है तो उनको 4 गुना वापस करूंगा। And what I've done with the rest of my goods, I've given half of it to help the poor. और जो कुछ मैं अपने अच्छाई से कमाया उसका आधा मैं गरीबों को दूंगा। And Jesus said, today salvation has come to your house. और तब यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। Some people saw him go to the house of a sinner, और कुछ लोगों ने पापी के घर में यीशु को जाते हुए देखा, and they criticized Jesus. और यीशु मसीह की आलोचना की। And Jesus said to them, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. मनुष्य का पुत्र ढूंढने और उनका उद्धार किया था, करने आए जो खोए हुए हैं। Now I believe it's in verse 9, और 9 पद में, where Jesus said salvation has come to this house. और जहाँ यीशु मसीह ने इस घर में उद्धार आया है। The word house in the Greek is the word oikos, O-I-K-O-S. और ये जो घर का जो यूनानी में जो शब्द आया है ओइकोस, It has to do with your realm of influence. और ये आपके जो प्रभाव के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। It has to do with a tribe, और उसका जो एक जनजाति a से, village, एक गांव से संबंध है, your relatives, आपके रिश्तेदारों से, your friends, आपके मित्रों से, people you do business with. जिनके साथ में आप व्यवसाय करते It हैं। has to do with everybody in the realm where God has given you influence. आपको जहाँ जहाँ भी आपका प्रभाव दिया है वहाँ से संबंधित है। This is what happened with Cornelius और यही बात कुरनेलियुस के साथ हुआ। in Acts chapter 10. प्रेरितों के 10 अध्याय में Peter came to his house, पतरस उसके घर में आया, and the scripture says he had brought in his relatives and his friends, and they were sitting in the house. और शास्त्र बतलाती है कि उसने अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको जमा किया और पतरस के इंतजार में बैठे हुए थे। And not just Cornelius received the salvation, but his whole area of influence did. उद्धार को केवल कुरनेलियुस ने प्राप्त नहीं किया, लेकिन जितने उसके प्रभाव क्षेत्र में थे सारे के सारे लोग उद्धार पाए। Jesus did not focus and say, Zacchaeus, today you are saved. और यीशु मसीह ये केवल दृष्टि जक्कई पर नहीं की, जक्कई तुम उद्धार पा गए। Oh, praise the Lord! Today Zacchaeus is saved. हे परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज जक्कई का उद्धार हुआ। No, नहीं, Jesus' vision is bigger than a person. यीशु मसीह का दर्शन एक व्यक्ति से बढ़कर है। He wants Zacchaeus to receive, yes. हाँ, वो चाहता है कि जक्कई स्वीकार ग्रहण करे। His sins were forgiven. उसके पाप तो क्षमा हुए ही, But the focus of Jesus was not on that.
लेकिन यीशु मसीह का जो फोकस वहीं पर नहीं था। The focus of Jesus was on restoring the kingdom. और यीशु मसीह का फोकस था राज का पुनर्स्थापना। And to restore the kingdom, there has to be a restoration in the whole realm of our influence. और उस पुनर्स्थापना के लिए हमारे आसपास हमारे जो प्रभाव क्षेत्र में होना चाहिए। Salvation has come to this house. उद्धार इस घर में आया है। What is in the house? उस घर में क्या है? The government of the house. वो घर में एक सरकार The है education and future of the house. और उसके अंदर में शैक्षणिक संस्था है और उसका भविष्य है The business of the house. और एक व्यवस्था का घर है। Hallelujah. हालेलुया। It's not enough to get a person saved and sins forgiven. We need to find their whole house. और केवल वो उसके पाप क्षमा हुए, वो नया जीवन पाया, लेकिन उसके पास और क्या है? And then I believe in verse 10, उसके बाद मैं 10 पद में विश्वास करता हूँ। Jesus said, I've come to seek and to save यीशु मसीह कहता है कि मैं उनको ढूंढने और बचाने आया हूँ that which was lost. जो खोए हुए हैं। That? Okay. Who has children? किनके बच्चे हैं आप? Who has a child? आपके परिवार में जिनके बच्चे हैं वो लोग बताइए। आप मुझे You have children. आपके बच्चे हैं। So if your child was with you, अगर आपका बच्चा आपके साथ है, and I looked at the child, अब मैं उस बच्चे को देखता हूँ and I said, what is that? और बोलते कि क्या है ये? That is not appropriate. That is not right to say. तो ऐसा कहना उचित नहीं है Because we do not refer to children or people with the word that. और एक इंसान एक बच्चे को भी वह नहीं बोलते हैं। This chair, ये कुर्सी, what is that? ये क्या है? But not a person. ये व्यक्ति नहीं है। I call you by name. आपको मैं नाम से बुलाऊंगा। You are a woman or a man. आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। You are not that. आप वह चीज नहीं है। But Jesus said this, यीशु मसीह ने ये कहा, I've come to seek and save that which was lost. यीशु मसीह कहता है कि मैं उसको ढूंढने के लिए और बचाने के लिए आया जो खोया हुआ था। Why did he choose that word? उसने उस चीज सबको क्यों नहीं कहा? Why did he say, I've come to seek and save the people who are lost? क्यों नहीं उसने कहा कि जो लोग खोए हुए उनको ढूंढने बचाने के लिए आया? Because the vision, which is much bigger than an individual's forgiveness of sins, was in his mind. और क्योंकि उसका दर्शन में एक ही व्यक्ति के उद्धार की दर्शन नहीं है। The vision Jesus had in Genesis 1, when he created everything, जब यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया उसके पास जो दर्शन था, is the same vision he still has when he is talking to people walking with us. और हमारे साथ जो लोग चल फिर रहे उनके लिए भी वही दर्शन है। What was the original vision? वो जो मूल दर्शन क्या था? To build his kingdom in the earth. धरती पर परमेश्वर की राज की स्थापना। And to do it through man. और इसको मनुष्य के द्वारा स्थापित Have करो। dominion, rule. और एक वश में करो, राज करो। So now he brings to mind again, एक बार फिर से मनुष्य को लाता है। as his disciples are listening, और जब चेले लोग सुन रहे हैं, as religious people are listening, जब धार्मिक लोग सुन रहे हैं, he's saying, I've come to save that which was lost. मैं उस चीज व्यक्ति को ढूंढने और बचाने के लिए जो खोया हुआ है। I want to restore business. I'm going to restore business. मैं व्यवसाय को पुनर्स्थापित I करूंगा। want to restore education. मैं शिक्षा को पुनर्स्थापित करूंगा। I want to restore government. और मैं सरकार को पुनर्स्थापित I'm करूंगा। taking it back from Satan. मैंने शैतान से वापस ले लिया। Hallelujah. हालेलुया। I think you sang a song this morning. I think you sang a song this morning. और आप एक गीत को गाएंगे या सोचेंगे Something about him उसके बारे में। under our feet. और हमारे पाँव के नीचे है। How can he be under my feet? आपके मेरे पाँव के नीचे कैसे हो सकता है? Only as he is put under the feet of many in communities
and the kingdom rules. और बहुत से समाज के अंदर में वो राज के जो सिद्धांतों को लाया है। Hallelujah. Look at somebody. किसी के तरफ मुड़िए, Look at somebody. अगल बगल में किसी से की तरफ मुड़िए, And say, when you do this, जब आप ऐसा करोगे Satan is going to fight you. शैतान तुम्हारे साथ में भिड़ जाएगा। Amen. Doctor, how much time do I have? When we come back after lunch, आपको यदि पसंद है ताली तो बजा दें।